اس کو انکاؤنٹر کے حوالے سے جو انکاؤنٹر ہوکرسر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو لواحقین نے کہا کہ وہ بے گناہ ہے، وہ ملٹنٹ نہیں ہے، اس پہ بھی لیفٹیننٹ گورنر نے جموں میں ایک پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ پرینکا گپتا ہمارے ساتھ ہماری سہیوگی جموں سے براہ راست جڑی ہے، ان سے بات کریں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پرینکا، بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا یہ پیکیج کے حوالے سے کس طرح کا فائدہ مل سکتا ہے یہاں کے نوجوانوں کو، خاص کر اس سے انڈسٹری سیکٹر کو کتنا بڑا بوسٹ مل سکتا ہے؟ جی روف، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج جموں میں جس طرح سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایک پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا، اس میں 3 بڑے مدوں پر بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انڈسٹری کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں، کیونکہ بڑا اپڈیٹ یہی ہے کہ 28,000 کروڑ کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پیکیج 2021 ایل جی نے اناؤنس کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پر جاننا کہ ڈیٹ آف نوٹیفیکیشن سے لے کر 2037 کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ جو پیکیج ہے وہ مہیا کروایا جائے گا، جو کہ یو ٹی جموں کشمیر کی انڈسٹریل گروتھ کے لیے اور نئی انویسٹمنٹ آئے اس کے لیے، جاب کریشن کے لیے انڈسٹریل سیکٹر میں کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہیں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار جموں کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے، اس طرح کی انڈسٹریل انسینٹیو اسکیم سامنے آئی ہے جس سے کہ بلاک لیول پر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو جموں کشمیر کے دور دراز کے علاقے ہیں ان میں بھی کافی زیادہ وکاس ہوگا۔ وہیں پر امپلائمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے کہ بہت زیادہ روزگار کو بڑھاوا ملے گا، چاہے ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، ہارٹیکلچر سیکٹر کی بات کریں، سیریکلچر سیکٹر کی بات کریں، ان لینڈ فشریز کے ساتھ اینیمل ہسبینڈری اور ڈیری کی بھی بات کریں، تو بہت زیادہ جو نوکریاں ہیں وہ اس سے جنریٹ ہوگی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت بڑا ریلیف ہے انڈسٹریلسٹ کے لیے، مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے، سروس سیکٹر کے لیے، ٹورزم کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی سیکٹر کے لیے۔ تو امپلائمنٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی یہ اچھی خبر ہے سب کے لیے اور خاص طور پر بڑا ریلیف ہے انڈسٹریل یونٹ کے لیے۔ پرینکا، یہ بھی جاننا چاہوں گا ہوکرسر انکاؤنٹر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کیونکہ جہاں فوج اور پولیس کا دعویٰ کہ تینوں جو مارے گئے نوجوان وہ ملیٹنٹ ہیں، مگر جو لواحقین ہیں وہاں کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے اور ان کی جو میت ہے واپس دینے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع اس پہ بھی لیفٹیننٹ گورنر نے بات کی، کیا کچھ کہنا ہے لیفٹیننٹ گورنر کا اس حوالے سے؟ بالکل روف، میں آپ کو بتا دوں جب لیفٹیننٹ گورنر کو لاوے پورہ انکاؤنٹر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یو ٹی جموں کشمیر ہے کافی زیادہ سینسٹیو یو ٹی ہے اور اس کے چلتے جو لاوے پورہ انکاؤنٹر کے فیکٹس ہیں وہ اپروپریٹ ٹائم پہ سامنے آئیں گے۔ ایک ہائی لیول کمیٹی کو گٹھت کیا گیا ہے، پوری طرح سے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی روف انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی ورژنز کو انہوں نے خود نوٹ ڈاؤن کیا ہے، جو بھی ورژن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آئے ہیں، جو بھی ورژن ان تینوں کی فیملیز کی طرف سے کہے گئے ہیں، ان سب کو نوٹ ڈاؤن کر کے پوری طرح سے اس پر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہائی لیول کمیٹی گٹھت کی گئی ہے، ہائیسٹ لیول پر پوری کوشش رہے گی کہ فیئر انویسٹیگیشن لاوے پورہ انکاؤنٹر کے حوالے سے ہو۔ پرینکا، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا 4G انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، کیونکہ بڑا معاملہ بنتا گیا 4G انٹرنیٹ سروس، بار بار لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور سرکار اس کو ریسٹور نہیں کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر نے کیا کہا 4G ریسٹوریشن کے حوالے سے؟ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد اس کو ریسٹور بھی کیا جائے گا۔ بالکل 4G کا سوال جب لیفٹیننٹ گورنر سے کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں وہ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے 2 ہی ڈسٹرکٹس میں ابھی 4G چل رہا ہے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں جلد ہی خوشخبری مل سکتی ہے، 4G انٹرنیٹ سروسز ریسٹور ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی گٹھت کی گئی ہے جس سے پورے ایشو کو ایگزامن کیا جا رہا ہے، پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنی جلد جموں کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروسز کو بحال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس طرح کا اشارہ دیا ہے کہ جلد جو جموں کشمیر کی جنتا ہے ان کو خوشخبری ملے گی اور آنے والے دنوں میں جو 4G انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ جموں کشمیر میں بحال ہو جائیں گی۔ چلیے پرینکا، بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے سہیوگی پرینکا گپتا بات کر رہی تھی اور بات ہو رہی تھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے آج کے پروگرام کے حوالے سے، جہاں پہ انڈسٹریز سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے مرکزی سرکار نے پیکیج جو ہے اس کی منظوری دی ہے، ساتھ ساتھ ہوکرسر انکاؤنٹر اور 4G کے حوالے سے بھی وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر نے بات کی۔ ناظرین، آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں، بات کریں گے سابقہ وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی آج 5ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پہ
पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के हमरा पार्टी के लीडरान और वर्करान जो है वो आज बिजबिहारा गए, वहाँ पे उनके मज़ार पे उनके हक़ में दुआई मग़फ़िरत की और उनको ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पे महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बार बार जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की बात कही, जम्मू कश्मीर के मामले को हल करने की बात कही है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिश्ता मजबूत हो, इसकी बार बार उन्होंने वकालत की है। और क्या कहना है महबूबा मुफ्ती का, हम आपकी नज़र करते हैं। मुफ्ती साहब तो हमसे जुदा हुए और आज मुझे लगता है कि हम सबको ये एहसास हो रहा है कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, मुफ्ती साहब का जो नज़रिया था, मुफ्ती साहब की जो दूर अंदेशी थी, वो काबिल सताइश है। और जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, अगर उन मामलात को हल करने का, अगर जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से, इस तकलीफ़ से बाहर निकालने का कोई हल है तो वाहिद वही है जो मुफ्ती साहब कहते थे, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। वो बार बार कहते थे कि इस खित्ते में जो अमन का रास्ता है वो जम्मू कश्मीर से गुजरता है और जम्मू कश्मीर में अमन का जो रास्ता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में अच्छे ताल्लुकात, दोस्ती, बातचीत से हासिल हो सकता है। क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में आप अमन कायम नहीं करेंगे, और वो इसके कतई ख़िलाफ़ थे कि जम्मू कश्मीर के लोग सफ़ेद झंडा उठा के अमन यहाँ कायम हो। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर में रिकन्सिलेशन हो, बातचीत हो, डायलॉग हो, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, बॉर्डर्स पे सीज़ फायर हो जैसे कि उनके वक्त में हुआ था, आपस में बॉर्डर इरेलीवेंट हो जाए जैसे उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोल के दिखाया था। तो उन्होंने एक नक्शा दिया था, क्योंकि आप किसी भी कौम को ताकत के बलबूते पे नहीं दबा सकते ज़्यादा देर। आप एक इंसान को, आप उसको कैद कर सकते हैं पर उसके ख्यालात को कैद नहीं कर सकते। इसलिए ये ख्यालात की जंग है जो मुफ्ती साहब बार बार कहते थे, और इस जंग को जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में बातचीत करें, रिकन्सिलेशन हो, डायलॉग हो, और हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क की जो सरकार है वो ये समझे, इस बात को जाने कि ताकत से कोई, दुनिया में कोई भी ताकत के बलबूते पे लोगों के दिल और दिमाग नहीं जीत पाई है। हमने अमेरिका जैसी ताकत को देखा, आज वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस निकाल रहे हैं, वो भी बातचीत चाहते हैं तालिबान के साथ। तो ये तो जम्मू कश्मीर तो कहा जाता था हिंदुस्तान का ताज है। जम्मू कश्मीर ये तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हिंदुस्तान का हाथ थामा था। तो आज मैं समझती हूँ कि उस हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जिस बेदर्दी से 5 अगस्त 2019 को बीजेपी के सरकार ने, बीजेपी के जो अक्सरियत का जो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इतने बड़े जुल्म के पहाड़ ढाए, इतनी मुसीबतें डाल दी, तो ये इससे जम्मू कश्मीर मुल्क के नज़दीक नहीं आ सकते बल्कि और दूर चला गया है। इधर श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पे भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के सीनियर लीडरान वहाँ पे मौजूद रहे जिन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अकीदत पेश किया। इधर कुपवारा से भी, वहाँ के ज़िला दफ्तर पर भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 5वीं बरसी पे खराज अकीदत पेश किया गया। कि मुफ्ती साहब का जो विज़न है, जो उसकी सोच है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और उस अजीम लीडर को आज आपने देखा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे खराज अकीदत पेश करने के लिए। उसका जो विज़न, उसकी जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, हम ये समझते हैं कि वो एक रोड मैप है मसले कश्मीर को हल करने के लिए। और इस खित्ते में अगर अमन हम देखना चाहते हैं, इस जो उसका विज़न था, जो उसकी सोच थी, उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बर्फबारी हुई और बर्फबारी से तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। मकान गिरे, छत गिरे, लोगों की जानें चली गई हैं, हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ। और बार बार सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दावे कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोस है और लोगों तक सहूलियात पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। खासकर रोड क्लियरेंस की बात करें, बिजली पहुंचाने की बात कही जा रही है, और जो एसेंशियल कमोडिटीज लोगों को चाहिए
वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है? ये स्टेट इंतज़ामिया जो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया वो बार बार बात कर रही है, या ज़िला इंतज़ामिया जो भी ज़िले में मौजूद है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स वो बार बार बात कर रहे हैं? मगर लोग जो हैं वो अभी भी शिकायतें करते रहते हैं। हम ज़िला बडगाम की अगर बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो शिकायतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं दिख नहीं रही है, सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई जा रही है, लोगों के मुश्किलातों में इजाफा होता जा रहा है। चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके इलाके के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से हमारे न्यूज़ रूम को काफ़ी ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई है मुख्तलिफ इलाकों से, खासकर ज़िला बडगाम की अगर हम बात करें। ज़िला बडगाम के जो पार्टी हेडक्वार्टर है वहाँ से नज़दीकी 2 किलोमीटर की दूरी पे एक इलाका पड़ता है लखरीपोरा। वहाँ अभी स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है, लोगों को मुश्किलात है, बीमारों को अस्पताल जाने में दिक्कतें पेश आ रही है। तो वहाँ से हमारे साथ फारूक अहमद जो है वो फ़ोन लाइन पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या है इलाके के। जी फारूक बताइए, क्या वहाँ पे बर्फबारी जो है वो अभी हटाई नहीं गई है और किस तरह के हालात बने हैं आपके इलाके में? चाहे हम बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें, पावर सप्लाई की बात करें या राशन के हवाले से, किस तरह के इंतजामात वहाँ पे किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, फारूक बात कर रहा हूँ सर। कल से हमने 3-4 बार उनको फोन किया एडमिनिस्ट्रेशन को जी कि यहाँ पर बर्फ हटाई जाए। हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है जी। तो मुझे नहीं लगता ये दावे कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वो करे ये करे। जब बडगाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर बर्फ नहीं हटाया गया तो जो फार फ्लंगस एरिया है तो वहाँ पर क्या हाल होगा। तो यहाँ पर हमारा रोड है अभी 2 किलोमीटर, इस पे भी अभी बर्फ नहीं हटाया गया। तो लोग जो है वो कैसे बाहर आ पाते हैं? नहीं, कहाँ बाहर गए हैं। कल भी यहाँ एक इमरजेंसी केस था, पेशेंट था, तो फिर हमने यहीं पर डॉक्टर को बुलाया, उसको पहले लाना पड़ा तो उसने यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया। अच्छा। अगर खुदा न खासा कुछ इमरजेंसी आती है यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उससे सर। हमने सर कल भी फोन किया था इनको, जेई साहब को फोन किया, वो कह रहे हैं अभी गाड़ी निकल रही है, अभी तेल डाल रहे हैं, अभी किसी गाँव में है वो। तो मुझे नहीं लगता है जब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी सूरत हाल है तो अल्लाह ही फिर निगहबान है जो फार फ्लंग एरियाज होंगे। नहीं, मुझे एक चीज बताओ कि आपके इलाके में बाकी जब रोड कनेक्टिविटी नहीं तो बाकी सहूलियत कैसे होगी? क्या पीने के पानी के हवाले से क्या किस तरह की सूरत हाल है? बिजली का क्या हाल है? और खासकर जो एशियाई खुर्दनी की चीजें हैं क्या वो वहां पे पहुंच पाई है आपके इलाके में? सर बिजली का अगर हम बात करेंगे, वॉलंटियरली हमने परसों 10-15 आदमी यहाँ निकल गए, उन्होंने लाइन रेस्टोर की। बट लाइन रेस्टोर होने के बाद हमारे लाइनमैनों ने स्विच ऑफ रखे फोन, तो क्योंकि उनका इलाका नहीं चल रहा था तो हमारा इलाका ठीक था तो उनको पावर रेस्टोर करना चाहिए था। जबकि उन्हें ट्राई भी दी, पावर भी लग गया, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पावर नहीं रखा। तो कल फिर हम दोबारा निकले, 20-25 आदमी थे, तो वहां पर हमने खुद वॉलंटियरली रेस्टोर लाइन की। तो कल शाम 10 बजे हमें सर पावर आ गया। रही बात वाटर की, तो कल से हमने यहाँ पर पीने के पानी को नहीं देखा है, क्योंकि वो पता नहीं लाइनमैन कहाँ है, उन्हें पानी ही बंद रखा है। आज सुबह भी लोग परेशान थे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। सर कल सुबह से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली हो रही है। एशियाई खुर्दनी की चीजें, राशन वाशन है इलाके में वहाँ पे? हाँ राशन है, अभी गाड़ी यहाँ कोई नहीं आ सकती है क्योंकि रोड बंद है। अगर किसी के पास नहीं भी होगी तो बेचारा क्या कर सकता है इस वक्त, क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक है। चलिए नाज़रीन, ये ज़िला हेडक्वार्टर के नज़दीक, डीसी साहब के नज़दीक में एक गांव पड़ता है लखरीपोरा, 2 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। आपने सुनी फारूक अहमद की बात, इनका कहना है कि स्नो क्लियरेंस नहीं हो पाई है। अगरचे कई बार इन्होंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई है, टेलीफोन भी किया, मगर कोई रेस्पॉन्स अभी तक इनको नहीं मिला है। ज़िला बडगाम के बीरवा इलाके की बात करें तो बीरवा इलाके में भी इस तरह के मुश्किलात हैं। वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में अभी बर्फ़बारी हटाई नहीं गई हैं सड़कों से और लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। वहाँ पे कुछ इलाकों में पावर सप्लाई को रेस्टोर भी नहीं किया गया है और पीने के पानी के हवाले से भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। नईम अहमद जो वहाँ के एक लोकल है वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के हालात है वहाँ पे। जी नईम बताइए, आपके इलाके में किस तरह के हालात है? बर्फ़बारी हटाई गई है, पावर को रेस्टोर किया गया है और आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की है बीरवा की, जो एसडीएम साहब है, आपने उन तक भी बात पहुँचाई है, मगर अभी तक ना कोई मशीन आई है और ना सड़कों से बर्फ़ हटाई गई है। क्या कुछ सूरत हाल है आपके इलाके की? जी सर, मैं वरागांव में रहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आता है, तहसील पड़ता है बीरवा। जी सर, जो हमारे सड़क है, रास्ता सड़क जो बीरवा से वरागांव आती है, वरागांव से जाती है एरजाल तक, और वरागांव से जो बडगाम सड़क है
अभी तक बर्फबारी से ये बंद है सर। पिछली बार हमने एसडीएम साहब से कॉल किया है, तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम उसको मशीन लगाएंगे, जेसीबी लगाएंगे तो बर्फ हटाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं जेसीबी आया, नहीं आया, कोई मशीन नहीं आया। हमारे गांव में इतनी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बीमार है जो इस वक्त अपने घर में हैं, हम उसको ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे सर। आप इस गुलिस्तान न्यूज की वसादत से हम ये जो हमारा मसला है, आप आला हुकाम का नोटिस लाए, आपकी मेहरबानी होगी सर। मुझे एक चीज बताइए, क्या लोग घरों से बाहर आ पा रहे हैं? किसी को मजबूरी में कहीं जाना हो, कोई अस्पताल किसी को जाना हो, बीमार हो, तो उनका क्या हाल है? कुछ नहीं है सर, अभी वो तो घर में ही है। अगर कोई बीमार है, जैसे मैं एक घर में इस वक्त मौजूद है, यहाँ एक बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो जो यहाँ की जो नौजवान कमेटी है, तो हमने फैसला कर दिया कि उसको हम किसी चारपाई में बैठकर वहाँ हरदपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ तक ले जाएंगे सर। ये गांव के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, जो हमारे गांव की जो आबादी है, कम से कम 450 चूल्हे हमारे गांव की आबादी है सर जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। चाहे वो रास्ता बंद है, पानी पिछले 4-5 दिन से गायब है, बिजली भी पिछले 5-8 दिन से गायब है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है बर्फ का जो इस समय जो रास्ते बंद है, ये सबसे बड़ा मसला है। नहीं, आपने कहा कि आपको पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात है, नहीं है, बिजली भी नहीं है, वहां पे रेस्टोर नहीं हो पाई है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या गांव के इलाके के लोगों को राशन मिल रहा है? वहां पे उस तरह की कोई फैसिलिटीज है? राशन इलाके में पहुंचा है क्या? आज से 4 दिन पहले ये जो फूड महकमा है, उनने 4 दिन पहले राशन गांव में तकसीम किया है। उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम इन्हीं 3 चीजों से, इंसान की जो सबसे इंसान को जरूरत है, बिजली, पानी और सड़कें, वो तीनों चीजें बंद है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा? आपने एसडीएम के साथ बात की तो उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा कि हम पहले उसको रास्ता साफ करेंगे, तो हम उसको मशीन लगाएंगे, जेसीबी लगाएंगे, लेकिन उनने सिर्फ हमारी बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से अभी तक मशीन नहीं लगी है? नहीं, किसी भी सड़क पे जो हमारा गांव सेंटर में आता है, चाहे यहाँ से निकलती है बड़गाम सड़क, वो भी बंद है, यहाँ से निकलती है बीरवा सड़क, वो भी बंद है, यहाँ से निकलती है एक और सड़क जो वरागाम से जैनी गांव तक जाती है या कुंजरा तक जाती है, वो भी बंद है, और एक और सड़क निकलती है वरागाम से जो ब्लॉक तक जाती है, ब्लॉक हरदपुर जिसको ब्लॉक सुखना कहते हैं सर, वो भी बंद है सड़क। चारों सड़कें हमें बंद है, हम जाए तो जाएंगे कहाँ? नाज़रीन, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। हमने भी जो डीसी बडगाम है उनसे बात करने की कोशिश की, उनको फ़ोन किया, अगरचे उन्होंने हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया, हमने मैसेज के ज़रिए भी उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं आया है। चराज शरीफ इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, कई 4 फुट कई 5 फुट बर्फ़बारी हुई है, और 5 फुट बर्फ़बारी में लोग जो है वो फंसे पड़े हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कहीं नहीं दिख रही है। डलवन की बात करें, यूसमर की बात करें, तिलसरा की बात करें, तो वहाँ के लोगों के मुश्किलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और लोगों का इल्ज़ाम है कि यहाँ से बर्फ़ हटाने का काम शुरू भी नहीं किया गया है, पावर को प्रॉपरली रेस्टोर नहीं किया गया है, और पीने के पानी के हवाले से लोगों को दिक्कत है, और कई इलाकों में राशन भी नहीं पहुँचाई गई है। बशीर अहमद हमारे साथ है, जो लोकल है, चराज शरीफ के फूड के साथ वाबस्ता है और फूड एसोसिएशन के जो सदर भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे चराज शरीफ इलाके में क्या हालात है, क्योंकि अगर मेन टाउन की हम बात करें तो म्युनिसिपल कमेटी चराज शरीफ के अंडर कुछ ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ से भी वहाँ से भी बर्फबारी को अभी तक हटाया नहीं गया है। जी बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सूरत हाल चराज शरीफ की है? आपके जो एडजेंट एरियाज है चराज शरीफ के, जो बाकी इलाके हैं, वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है? क्या बर्फबारी को हटाया गया है कि नहीं? और बाकी जो लोगों को डेली नीड्स चाहिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज उनको चाहिए, क्या वहाँ उन तक पहुँचाई गई है या नहीं? ज़रा तफसीलात से बताइए। जी सर, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा गुलिस्तान चैनल का कि आप हमेशा लोगों की सहायता करते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो चराज शरीफ है, ये इसकी एक बड़ी अहमियत है। यहाँ पे दरगाह भी है और डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ताज माना जाता है। अभी तक रास्ते खुले नहीं है। चराज शरीफ श्रीनगर थोड़ा सा रास्ता खुल चुका है, लेकिन इसमें पूरी मतलब सोमू जा सकती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाकी जो चराज शरीफ के मुल्क के इलाका जात हैं, जैसे तिलसरा है, डलवन है, कंदज है और यूसमर्ग जो फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे अभी तक भी रास्ता नहीं खुला है। और वहाँ पे डिलीवरी केसेस जो फोन आ रहे हैं यहाँ पे हमें भी कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें राशन भी नहीं है, खाने पीने की चीजें मैसर नहीं है, तो रास्ता नहीं खुल रहा है। एक्चुअली कटर मिलना चाहे, R&B के जो लोग हैं वो तो मुतहरिक हैं,
लेकिन उनके पास मेन पावर नहीं है। जो मैकेनिकल वाले हैं, जैसे कटर यहाँ पे अलर्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा या और दूसरी जगहों पे, समझ नहीं आता है कि चार शरीफ एरिया में ये जो चारडोरा का हमारा डिवीजन है आरएनबी का, इसके लिए कटर क्यों नहीं इन्होंने तैनात किया हुआ है या अलर्ट क्यों नहीं है। बाकी जो है चार शरीफ के अंदरूनी जो रास्ते हैं अभी तक वो भी बंद पड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े खुले हैं, थोड़े से नोटिफाइड एरिया ये जो म्युनिसिपल कमेटी है वो काम कर रही है, और जो आरआरबी है वो अभी आज सड़क खोल रही है। बशीर साहब, कितनी बर्फबारी हुई है चार शरीफ में और बाकी जो आपके मुल्क का इलाके है वहाँ पे कितनी बर्फबारी हुई? चार शरीफ में जो मेन चार शरीफ कम से कम 3.5 से 4 फुट तक बर्फ पड़ी है, और जो ऊपर का इलाका है यूसुफबर्ग वहाँ पे होगा 5 फुट से ऊपर ही बर्फ। अच्छा, जो बाकी जो मामला है पीने के पानी के हवाले से बात करें, पावर क्या रेस्टोर किया गया है या बाकी जो एशियाई खुदनी की चीजें या चावल राशन वहाँ पे पहुंचाया गया है? पावर 20 में आ रहा था, कल से पावर भी नहीं है लोगों के पास, और अभी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब ये रेस्टोर करवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे पानी का है, पानी उन्होंने आज कहा है कि हम रखेंगे आपको 9 से 5 तक, क्योंकि ऊपर जो इनको भी प्रॉब्लम है, जो ऊपर बर्फबारी हुई है वहाँ रास्ते नहीं जा सकते हैं, ये लोगों को ऊपर जो मजदूर है बेच रहे हैं जंगल एरिया में। जहाँ अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, चार शरीफ की बात करें या मुख्तलिफ इलाकों की, क्या राशन वहाँ पे पहुँचाई गई है? राशन कहाँ पहुँचाई गई है? ये सरकार खुले वो जो बताते हैं कि हमने रास्ते खोले हैं, वो क्या, कुछ भी नहीं है। ऑफिसर्स यहाँ फोन कर रहे हैं हम एसडीएम साहब को, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। डीसी साहब की तो दूर की बात है। चलिए, लोगों की बात हमने आप तक पहुंचाई, हमने बात करने की कोशिश की और बात पहुंचाने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन तक, जो बार बार दावे कर रहे हैं कि लोगों के मामलात को हल किया जा रहा है और मुश्किलात को कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है। कई ऐसे इलाके हैं बर्फबारी जो है वो सड़कों से हटाई नहीं गई है, लोगों को अस्पताल जाने में दिक्कत है, कई ऐसे बीमार हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई ऐसे भी बीमार हैं जो अस्पताल में है वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके लवाकिन की मौत हुई है और वो उनकी डेड बॉडीज भी घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेटबाग का इलाका है, बडगाम से थोड़ी दूर ये इलाका है, वहां के लोगों ने इस तरह की शिकायत की टेलीफोन पे कि वहां के एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है और डेड बॉडी पहुंचाने में लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के बार बार दावे ऑन टोज हैं, असल हकाइक जो है वो आपके सामने है, ज़मीनी सूरत हाल किस तरह की बनी हुई है। इधर बात करें, जो भी डीडीसी कैंडिडेट जो जीत कर आया है, उनका यह कहना है कि इंतजामिया ने उनको मुश्किलात में डाल दिया है। उनका यह कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, एक तो लोगों ने उनको वोट दिया और लोगों की जिम्मेदारी उन पे, और जब से बर्फबारी शुरू हुई है तब से उनको लोग जो है वो टेलीफोन करते हैं उनके इलाके के हालात के हवाले से, वहां बर्फबारी हटाने के हवाले से, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो वादे उनसे किए गए थे इलेक्शन से पहले वो वादे कहीं पूरे नहीं हुए हैं। डीडीसी कैंडिडेट जो विनिंग कैंडिडेट है खान साहब के बशीर अहमद भट्ट ने अपने इलाके का दौरा किया और गुलिस्तान के साथ बात की और कहा कि इंतजामिया फेल है और जो वादे उनके साथ किए गए थे वो वादे कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, और जो डीडीसी कैंडिडेट्स ने वादे लोगों के साथ किए थे वो वादे भी कहीं पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से वो मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। आप सुनिए बशीर अहमद भट्ट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का मैंने कुछ इंतजाम नहीं देखा। जो हमारे इलाके के हैं, जो ऑफिसर्स है, एसडीएम साहब है, डीएसपी साहब है, तहसीलदार साहब है, हमारे इलाके में काम हो गया, 40-50% काम हो गया, मगर मैंने उसको 4 बार बोला पहले मेन सड़कें करो या अंदर से करो, सड़कें बीमार हैं, लोग बहुत मुश्किलात में हैं, मगर ऊपर से मैसेज आते हैं कि हमारे पास मशीनें नहीं हैं, मशीनें 2 हैं, मशीनें 1 है। पहले बोलते हैं कि ये कौन सा ये रोड करो साफ, आते हैं कि ये PWD वालों का है, दूसरा रोड करो साफ, ये हमारा नहीं है, ये है ये मैकेनिकल का है, तीसरा आता है ये क्या है, ये PMG का है। हमको ये समझ ही नहीं आता है जो उसने ये टेंडरिंग की कि बर्फ़ का इसका काम कुछ नहीं हो गया, और न वो बर्फ़ नहीं उठाया, सब बर्फ़ नहीं उठाया, कुछ नहीं, कुछ जगह हो गया साफ 40-50%। ये हमारी जो है उधर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है खान साहब बुला के, उन्होंने थोड़ा खुद के लिए किया, ये खुद किया ये साफ। कि बाकी जो रही गवर्नमेंट की
मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये क्या मैं क्या मुझे पथरी का बात करूंगा, मैं क्या खारिन का बात करूंगा, मैं क्या खान साहब आरी गांव का या शमसाबाद का, कलशीपोरा का, सब जगह किसी भी जगह नहीं ये इंतज़ाम नहीं है, बर्फ़ हटाने का कुछ काम नहीं है। हमारे हुमामा में है, हम जिस होटल में हैं हम बंद रखे हैं, बाहर है, हम बाहर गेट के बाहर निकलेंगे। अभी हम खुद निकले, मैंने कहा हम खुद उठाएंगे ये बर्फ़ शरफ। ये एडमिनिस्ट्रेशन है इतनी कि हमारे इधर हुमामा में है, ये सिटी के साथ है, इधर नहीं बर्फ़ उठाया। हमारे ऊपर गाँवों का ये पावर का भी कुछ नहीं हुआ, अस्पताल का भी कुछ नहीं, इंतज़ाम कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ यही ई टेंडरिंग है, वो है, ये है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।